Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of chordate paper. In this video lecture, we are going to discuss about the respiratory system of Scoliodon. You all might be aware of the respiration. So, respiration is nothing but the exchange of gases in between organism and atmosphere for the formation of energy in the form of ATPs. When we are talking about the scoliodon, so it is aquatic animal, so it wholly depends upon the dissolved oxygen which is present inside the water, and the respiratory organs are gills. No doubt vascular gills are responsible for the respiration. So when we are talking about the respiratory organs, so it consists of 5 pairs of gills. You can observe here. So these are the 5 pairs of gills which are having a gill pouches at the lateral side, and they are compressed anterior and posteriorly. Uh, these gills opens into the pharynx, so this cavity is pharynx. So this cavity is a pharynx, and these gills are opening inside of the body also and outside of the body also. So they open inside the pharynx with the opening that is called as internal branchial aperture. So it is internal branchial aperture, okay, and it opens outside of the body by external branchial aperture. This is also called as gill slit. When we are talking about these gill pouches, so they are separated by, you can observe here these gill pouches. So this is one gill pouch which is separated by one स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गिल सेप्टम. सो यहाँ पे जो 5 गिल pouches है, the empty spaces you can see. So these gill pouches are separated by one structure that is you're observing here. This is called gill septum, and gill septum is composed of or it's supported by the gill arch and a cylinder branchial rays. The gill septum is covered by an epithelial cells, and it is containing blood vessels, nerves, etc. in it, and it is having a mucous membrane on the either side or sometimes on the one side only, which is raised into numerous horizontal leaf-like structures. So there are numerous horizontal leaf-like structures there that are called as gill filaments और गिल लैमिले. इनको गिल फिलामेंट्स बोला जाता है या फिर गिल लैमिले बोला जाता है. सो आई विल शो यू. सो दिस इज द सिंगल गिल सेप्टम. ओके, यहाँ पे जो गिल पाउचेस आप देख रहे हो, सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ये गिल पाउचेस है, 2 गिल पाउचेस है जिनको ये गिल सेप्टम सेपरेट करता है बाय कमिंग इन बिटवीन. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है. यहाँ पे गिल आर्च है जो सपोर्ट करती है. सो यहाँ ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज गिल आर्च, एंड यहाँ ये जो है गिल, दिस इज द रे, ब्रैंकियल रे. और इसके दोनों साइड पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, सो ये जो कंपार्टमेंट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा. सो दिस इज काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर जो है जो मैंने ग्रीन मार्क किया है दैट इज गिल फिलामेंट और गिल लैमिले. अब ये जो गिल लैमिले हैं इनकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस भी इम्पॉर्टेंट है. अगर ये एक ही साइड पे हो, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक गिल सेप्टम है और इस पे यहाँ पे गिल फिलामेंट है, अगर वो एक ही साइड पे हो तो ये हेमी ब्रैंकियल गिल होगा. ओके, और अगर दोनों साइड पे हो तो इसको हम होलो ब्रैंकियल बोलेंगे. ओके, तो गिल क्या होंगे, हेमी ब्रैंकियल, होलो ब्रैंकियल. हेमी मतलब एक ही साइड पे गिल फिलामेंट होगा सेप्टम के, और होलो मतलब दोनों साइड पे गिल फिलामेंट होगा सेप्टम के. और when we are talking about this
स्कॉलिडॉन, तो इसका जो स्टार्टिंग 4 चेम्बर्स होंगे, यानी ये जो चेम्बर्स है, मैं दूसरी डायग्राम पे जाती हूँ। सो यहाँ, यानी यहाँ, ओके। सो यू कैन ऑब्जर्व ये गिल जो है आर्च है, और ये गिल सेप्टम है, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द ब्रैंकियल आर्च। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये लैमिले हैं, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊँगी, यही इसी पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं, सो ये जो स्टार्टिंग के 4 गिल सेप्टम होंगे वो होंगे होलो ब्रैंक। तो स्कॉलिडॉन में ऐसा होता है कि जो अगर आप माउथ से स्टार्ट कर रहे हो, तो जो फर्स्ट वाला गिल होगा, गिल सेप्टम होगा, वो हेमी ब्रैंक होगा, यानी ये सबसे फर्स्ट वाला ये हेमी ब्रैंक होगा। इसको सिर्फ एक ही साइड पे गिल लैमिले होंगे, और बाकी के 4 जो होंगे वो होलो ब्रैंक होंगे, यानी एक हेमी ब्रैंकियल है गिल और 4 होलो ब्रैंकियल गिल है। और जो मोस्टली स्कॉलिडॉन या इलास्मोब्रैंक के मोस्ट ऑफ द फिशेस में पाए जाते हैं, एंड सच टाइप ऑफ गिल्स आर कॉल्ड एज लैमेली फॉर्म गिल्स। उनको क्या बोलेंगे हम? लैमेली फॉर्म गिल्स, ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज लैमेली फॉर्म गिल्स। अभी ये तो हो गया अबाउट द ऑर्गन्स और अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो कैसा होता है, गिल्स कैसे होते हैं, ये तो आपकी समझ आ गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी mechanism in another video so that you can understand it easily and you will not get confused. So thanks for watching this video. Have a nice day.